Assalamualaikum friends. Hello everyone. So, in the last recording we are done up till illustration 4, right? I hope you are now clear with each and every concepts, each and every entries for redemption of debentures, right? For refreshing your concept, I would like to make you all remember the unlisted company needs to requires to provided a reserve of for debenture redemption of 10% of outstanding debentures, and the debenture redemption reserve investment must be done up to 15%, right? Also we seen x interest come interest. I hope now you are all clear with the concept of x interest price and come interest price, right? So come interest price is where if you have purchased the debentures within the interest holding within the interest period, then the price includes the due interest, right, up till the holding. But if it's x interest price, then you need to additionally pay interest. The price doesn't include the interest of the period of holding, right? Now, uh, after refreshing the major concepts, I would like to say that please recall all the entries, right? Also now we will move further, try to do all the sums, right? That will be your homework. Please keep the answer solution at some place. Just take the question and try to solve at your own, and it should be handwritten, not audit, right? So because audit के मतलब if you're auditing the question, it is nothing wrong if you we don't have time, but some questions must be compulsorily written, solved written, right? Why I prefer it? Because if you solve it in written, you get to know where are you lacking, right? एक छोटे छोटे से पॉइंट आपसे रह जाते हैं, आपका स्पीड मतलब अच्छे से आपके पकड़ में आ जाता है. इफ़ यू ऑडिट द सम, दैन आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़, छोटी वाली चीज़ आपके ध्यान से बाहर चली जाएंगी और आपकी स्पीड भी नहीं आएगी, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन विथ योर स्पीड इज मस्ट इन अकाउंट्स पेपर, राइट? नाउ let's move to illustration 5. Now the summarized balance sheet of B Company Limited, unlisted company. See, unlisted company मतलब you must just recall the criteria कि 10% का reserve and 15% का reserve investment, right? Other than AIFI, banking, NBFC, HFC as on 31st March 1 आर एज अंडर. तो हमें एक बैलेंस शीट दी गई है जहाँ पे शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, इश्यूड की, प्रॉफिट एंड लॉस, 12% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, एसेट साइड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवर्स, कैश एंड बैलेंस एट बैंक. ओके. Reading further, at the annual general meeting, it was resolved to give the existing shareholders the option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 share held prior to bonus distribution. This option was taken by all the shareholders. See, here they are saying that to give existing shareholders the option. Here they are giving an option to their existing shareholders to purchase newly shares. So यहाँ पे fresh issue है. Okay, this is they are talking about shares and it is nothing about debenture. So don't get confused, right? This is the fresh issue of shares. Fresh issue of shares, right? So here each and every shareholder is also taking the option. So what was the option given to them before bonus distribution? Okay, for every 4 shares they are given 1 share of rupees 10 at rupees 15, right? So let's see how many shares are there. 20,000 shares are issued. Okay, 20,000 shares are issued. So how many shares are newly issued? 20,000 divided by 4, that is 5,000, right? So 5,000 shares are issued at the rate of rupees 15. Okay. I hope you are clear with this adjustment. Moving further,
to issue one bonus share for every 5 shares held. So next adjustment is about bonus issue, right? Now they are saying that 5 shares, one share of bonus is given for every 5 held. Right now we have actually 20 issued plus 5 fresh shares. So for bonus it will be 25 to be taken into consideration, right? If you hold 5 shares, right, you are getting one in bonus. If you hold 25,000 shares, then how much, right? So just do the calculations. 5,000 shares will be given as bonus. I hope you are clear. Please recall chapter number 6, right? So 5,000 shares are given as bonus, and bonus will always be at the face value, that is rupees 10, right? I hope this adjustment is clear to all of you. Further, to repay the debentures at premium of 3%. Okay, so 1,20,000 debentures are there, right? And you need to repay it at 103 because premium is 3%, right? So 100 का फेस वैल्यू होगा 3% प्रीमियम, दैट विल बी 103 पे आपको रिपेमेंट करना है. नाउ यू नीड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. हमने देखा कि पहले फ्रेश इश्यू हुआ है 5,000 शेयर्स का, तो उनका एंट्री कैसे होगा कि हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा, बाद में हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट? जब भी फ्रेश इशू हो तो आपने 12th स्टैंडर्ड में शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज पढ़ी होगी, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ी होगी, तो वही चीज़ है. एंड तो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो बैंक डेबिट होगा, बैंक से मनी रिसीव होगा, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट होगा, ठीक है. और शेयर एप्लीकेशन मनी फिर डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा. यहाँ पर 10 का शेयर 15 में बाय हो रहा है तो प्रीमियम है, ठीक है ना, तो प्रीमियम पे इश्यू हुआ है तो 5 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में चला जाएगा. I hope this is clear to you. Bank to equity shareholders to equity share capital to securities premium, ठीक है. How this came? 5,000 into 15, and here securities premium 5,000 into 5, and capital 5,000 into 10, right? Next, we seen that they are issuing bonus, right? So bonus will be utilized from securities premium, or they have profit and loss balance of 1,20,000. So let's utilize securities premium first, right? So if you see, they have utilized securities premium first. Securities premium was of 25,000, right? You can see here, and PNL was okay. Now bonus was issued for 5,000 shares into 10 rupees, 10 rupees face value, right? So 50,000 was the amount. How? 5,000 shares bonus into rupees 10. Bonus is always issued at face value. So we bring 25,000 from securities premium and profit, 25,000 from profit and loss, and we will credit bonus to shareholders, and thereafter bonus to shareholders will get debited and equity share capital account will get credited, right? See here, bonus to shareholders, equity share capital. I hope you are clear with this sum. It was a very easy sum where fresh issue, bonus issue was covered. Now we will see the last adjustment, debenture redemption. They have said that at 3% they are redeeming debentures, right? And debentures are of rupees 1,20,000. So first of all, if you remember, this is an unlisted company. So for redemption of debentures, you need to create a debenture redemption reserve account as per statute, because it is an unlisted company. Of how much percentage? 10% of outstanding debentures, that is 1,20,000, and that will come around about 12,000 rupees. Then after you need to invest this debenture redemption reserve, right?
that will be up till 15%. So we need to pass these entries along with it. Let's come here. You can see we have created a reserve of 12,000, right? प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस से हम हमारा रिजर्व साइड में करेंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस इज गेटिंग डेबिटेड, राइट. फिर ना हमने बोला 15% को इन्वेस्ट करना है, राइट. तो हमारा तो रिजर्व सिर्फ 10% से ही हमने क्रिएट किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम 15% अमाउंट का करेंगे. दैट विल बी ऑल्सो ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स. तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,20,000, उनका 15% हम इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज 18,000 रुपीज़. 1,20,000 का 15%, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा. बैंक से आपका पैसा बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट क्रिएट होगा. सो इन्वेस्टमेंट DRR इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 18,000, राइट. नाउ you will create the liability to pay to your debenture holders, right? And you have to redeem your debentures at the premium of 3, right? So your debentures will get debited, that will be your borrowings will get over. So debentures will be debited with 1,20,000 and you need to provide a premium of rupees 3. So 3,600 rupees will be premium payable on redemption. That will be your expenditure, which will be in all transfer to profit and loss account, right? And debenture holders will be credited, setting off a liability that now you will have to pay to debenture holders, right? So thereafter we will transfer premium payable on redemption to profit and loss account. I hope this entry is also clear. Now for paying to debenture holders, we need to realize our investment. So we will realize our investment of 18,000. So we'll receive money in bank, right? Here somewhere, see here there is a mistake. Actually bank will get debited. This entry has a mistake. Please just rectify it, right? Bank will get debited because you will receive money. Bank debit to DRR investment. There is a printing mistake, right? Bank debit to DRR investment 18,000 rupees, right? You will realize the investment. So आपका investment cancel off हो जाएगा and बैंक से आपको पैसा रिसीव हो जाएगा. फिर रही बात कि अभी बैंक से आपको पैसा रिसीव हो गया, तो अब आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे. डिबेंचर होल्डर्स को पे कितना करना था? 123,600. सो डिबेंचर होल्डर्स विल बी गेट डेबिटेड एंड बैंक विल गेट क्रेडिटेड. आपको यहाँ पे पेमेंट करना है. यहाँ पे जस्ट ये एंट्री को रेक्टिफाई कर लीजिएगा. नाउ अभी रहा सिर्फ लास्ट एंट्री के रिडम्पशन जब होगा तब हमारा रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में. सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000. I hope all the entries are clear to you. Now you need to post balance sheet, ठीक है. You need to prepare the balance sheet after this all adjustments. It's very easy. Okay, see, let me make you prepare here because you can get an idea of it. For preparing the balance sheet of company, you need to follow schedule 3, which will be learnt in chapter that unit 1, जो मैंने आपको बोला थियोरेटिकल है, ठीक है ना. वहाँ पे आपको शेड्यूल 3 का मैं डिटेल्ड एनालिसिस आपको समझाऊंगी. जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना, उनके एक एक कॉन्सेप्ट पे, उनके फॉर्मेट पे सभी बातचीत हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ हियर ऑल्सो दे विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, राइट. सो आपको थोड़ा उससे कोप अप करना रहेगा. शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से पहले हमारा आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट. नाउ पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. इफ़ यू कैन सी कि पहले हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं, ठीक है ना, 20,000 के. अभी हमारे पास इन ऑल कितने थे? 5,000 न्यू फ्रेश एंड फिर 5,000 बोनस से, राइट. तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अभी पहले कितना है? 2 लाख. इफ़ यू कैन सी ईयर. अभी हमें हर एक एडजस्टमेंट्स को देखते जाने का है, राइट.
सो हियर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 lakhs प्लस फ्रेश इश्यू में से कितने पैसे आए थे 50,000 राइट. सो 2 lakhs प्लस 50,000 एंड फिर बोनस से कितने आए थे 50,000 राइट. तो यहाँ पे 2 lakhs प्लस 50,000 प्लस 50,000 दैट मीन्स योर शेयर कैपिटल विल गेट टू बी 3 lakh रुपीज़. अगर आप इस तरह से करना चाहें तो ठीक है, या फिर आप इसी बैलेंस शीट में जाके मार्क कर सकते हैं कि हमने एंट्रीज पास की, उससे शेयर कैपिटल हिट हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस हिट हुआ है, डिबेंचर्स हिट हुआ है, ट्रेड पेएबल्स को हमने टच नहीं किया है, बैलेंस एट बैंक हिट हुआ है, बाकी जो है ट्रेड रिसीवेबल्स और वो उनको हमने टच भी नहीं किया है, स्टॉक को हमने टच नहीं किया है, एसेट को हमने टच नहीं किया है. ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे अपने मतलब अपने से कोई रह ना जाए, इसलिए आप इस तरह से वहाँ पे मार्क कर सकते हैं. अभी हमने कैपिटल को तो सुधार लिया है. प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000, फिर उसमें हमने एक्सपेंडिचर्स भी ऐड किए थे अगर आपको याद रहे तो. ठीक है ना. एक्सपेंडिचर्स में आप अगर देखें तो एक्सपेंडिचर हमारा था ये 25,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से हमने बोनस के लिए निकाला था राइट. सो जस्ट स्टार्ट अ कैलकुलेशन 1,20,000 माइनस 25,000 राइट. 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 12,000 रिजर्व के लिए क्रिएट किया था, तो वो भी माइनस होगा. प्रीमियम भी 3,600 माइनस होगा राइट. तो 12,000 एंड 3,600 और हमें 12,000 और 3,600 इतना सब्सट्रैक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट आएगा कंप्यूट कीजिए, वो बैलेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में डिस्प्ले होगा राइट. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी. Okay, I'm back. So are you done with the calculations? $79,400 is your profit and loss balance, right? So this we will post the amount in balance sheet. Thereafter, if you see that we created one securities premium, but it was directly utilized in by that bonus shares, right? So securities premium will get nil, 25,000 minus 25,000 nil, right? So there will be no effect. Then we need to see the bonus to shareholders gets cancelled, right? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को हमने देख लिया, बोनस टू शेयर होल्डर तो कैंसिल हो जाएगा राइट. फिर हमारे पास कौन सी चीज़ बाकी रह गई है, हाँ रिजर्व हमें लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, तो वो एक है. फिर बैंक को हमने देखने का है, ठीक है. डिबेंचर होल्डर्स कैंसिल हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट हमें दिखाना पड़ेगा, फिर हम नील करवा देंगे, ठीक है. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिखाना पड़ेगा, वो नील करवा देंगे. DRR 12,000 माइनस 12,000 वो नील करवा देना. DRR इन्वेस्टमेंट भी दिखा के 18,000 माइनस 18,000 नील करवा देना. फिर हम दिखाएंगे जनरल रिजर्व में जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र अमाउंट किया वो हमारे लाइबिलिटी साइड में आएगा. जनरल रिजर्व 12,000, ठीक है. तो ये हमें डिस्प्ले करने का है. हर एक एंट्री का इफेक्ट आप बैलेंस शीट में देख लेना राइट. तो ये जनरल रिजर्व हमें 12,000 दिखाने का है. एक अभी सिर्फ बैंक की एंट्रीज हमें बाकी रही है. अब यहाँ पे देख सकते हैं शेयर कैपिटल हमारा 3 लाख हो गया राइट.
रिजर्व्स एंड सरप्लस में 91,400 उन्होंने बोल दिया है. सो जस्ट गो एंड चेक द नोट्स. यू कैन सी ईयर नोट्स में उन्होंने बोला 1,20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस था. उसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन माइनस हुआ, बोनस में 25,000 यूज़ किया और डीआरआर में 12,000 यूज़ किया. 79,400 बचा, प्लस 12,000 हमारा जनरल रिजर्व. इससे मिला के हमारा जनरल रिजर्व 91,400 हो गया. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो सेम एज इट इज़ खड़ा रहा है. कैश इन हैंड 30,000 इज एज इट इज़. वी हैव नॉट टच्ड इट, राइट. Trade payables are also as it is. We haven't touched it, right? So ये trade payables भी हमारा ऐसे का ऐसे है. पूरा liability हमारा complete हो गया. Now we just move to asset side. Asset side पे हमने ये देख लिया है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज सेम, इन्वेंट्री सेम रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स सेम रहेगा, कैश भी सेम रहेगा. ठीक है, सिर्फ हमें बैंक वाला देखने का है. नाउ जस्ट कम बैक विद द बैंक, राइट. बैंक का हमारा ओरिजिनल बैलेंस है 2 लाख रुपीज़. ओके, सो 2 लाख में हमें एंट्रीज करते जाने का है. 2 लैक्स में पहले 75,000 रिसीव हुआ है फ्रेश इश्यू से, राइट. सो 2 लाख प्लस 75,000. जस्ट स्टार्ट अप विथ योर कैलकुलेटर्स. ओके, 2 lakhs प्लस 75,000, राइट. फिर बोनस में तो कोई बैंक से एंट्री नहीं होगा. ठीक है, कोई अमाउंट आएगा नहीं, कोई अमाउंट जाएगा नहीं. रिडेम्पशन में हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ किया था, तो पहले पे किया था, फिर रियलाइज़ किया था, और लास्ट में हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे किया हुआ है. सो पहले एड लेस 18,000, एड 18,000 लेस 123,600. जस्ट डू इट. 151,400 will be your net balance of bank. Tally it with your balance sheet and close your balance sheet, right? 151,400. I hope you are clear. Here your balance sheet gets tallied, asset side too. I hope you are clear with the sum, right? We will now move towards next illustration, illustration number 6. The summarized balance sheet of convertible limited unlisted company other than AFI banking company NBFC company. Okay, so ये भी unlisted है. Again keep the criteria in the mind. 10%, 15%, right? You have liability, share capital, general reserve, PNL reserve भी आपको दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख ले. फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है आपके पास, अदर लोन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. यहाँ पे करंट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की बात आएगी. सो इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट सम. ठीक है, फिर हमें आगे बोला है द डिबेंचर्स एसेट्स हमें दिए हुए, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट भी है डीआरआर का, कैश बैंक एंड अदर करंट एसेट्स. डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई. टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, right? Redeemable at the premium of 5%, and also confer the option to debenture holders to convert 20% of their holdings into equity. उनके पास ऑप्शन है 20% के उनके होल्डिंग है उनको इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे. ठीक है, और उनका प्राइस इक्विटी शेयर का कितना रहेगा 15.75 ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, राइट. मतलब 15.75 से हम उनका शेयर में कन्वर्जन करवाएंगे, बाकी का जो पेमेंट रह जाएगा वो हम कैश में कर देंगे. नाउ वो उन्होंने बोला है कि अज्यूमिंग दैट एक्सेप्ट फॉर 100 डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर्स. सो टोटली 25,000 डिबेंचर्स के अलावा, मतलब 1 लाख में से 25,000 निकाल दे तो 75,000 डिबेंचर्स बचते हैं, राइट. वो लोग कन्वर्जन के लिए ऑप्ट करते हैं. 25,000 बिल्कुल मना कर देते. 25,000 टोटली कैश में पेमेंट रिसीव करेंगे. हालांकि 75,000 में से 20% इक्विटी कन्वर्जन करेंगे और बैलेंस कैश में रिसीव करेंगे. Investments were realized at par. All transactions were put through on 1st July. Now you need to redraft the balance sheet of the company. You need not pass the entries. Just you need to redraft their balance sheets. So first I want to say कि आपको एक चीज़ समझ में आई कि टोटल है 1 लाख डिबेंचर्स, राइट. 1 लाख डिबेंचर्स है, उसमें से 25,000 ऐसे है जो
ऑप्ट नहीं कर रहे कन्वर्जन के लिए, सिर्फ 75,000 ऑप्ट कर रहे हैं। इसमें से इनके 20% होल्डिंग्स एट द रेट ऑफ 15.75 के शेयर में कन्वर्ट हो गए। बैलेंस 80% को हमें कैश में पे करना होगा, राइट। सो पहले हम इनका वर्किंग देख लेते हैं। पहले आप इनका वर्किंग देख लीजिए। जो है शेयर्स अलॉट कितने किए हुए हैं, तो आप देखिए 1,00,000 माइनस 25,000, ठीक है। 75,000 का 20% दैट इज 15,000। उसको हमने उन 15,000 डिबेंचर्स होंगे, राइट। उनका अगर 5% से रिडम्शन होगा तो 105 अमाउंट आएगी। प्रीमियम 5% है, राइट। तो 105 से हमारा अमाउंट होगा 15,75,000। ये 15,75,000 को हमें शेयर्स इश्यू करना है। तो कितने शेयर्स इश्यू हो गए? शेयर्स का प्राइस क्या था? 15.75। सो आप 1,00,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं ऑफ ₹10 एट ₹15.75, क्योंकि ये जो 75,000 के 20% थे ना, वो 15,000 डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो वो 15,000 डिबेंचर्स डायरेक्टली नहीं हो गए, उनका जो हमें अमाउंट पे करना था ना एट 5% प्रीमियम रिडम्पशन का, ठीक है, वो कितना है? 15,75,000। उतनी अमाउंट का हमें उनको शेयर्स देने का है। तो हमारा शेयर्स इन नंबर कितना होगा? 1,00,000 रुपीज़, राइट, क्योंकि इश्यू प्राइस 15.75 है, ठीक है। ये आएगी आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी जो बैलेंस पेमेंट रह गया कितने हैं देखिए, 1,00,000 डिबेंचर्स थे, उसमें से 15,000 ने शेयर्स में कन्वर्ट कर हो गए चुके हैं। अभी बैलेंस 85,000 को हमें कैश में पे करना है। कितने से पे करना है? 105 से, बिकॉज 5% प्रीमियम है। सो दैट अमाउंट कम्स टू 89,25,000, ठीक है। तो ये आपका इतना पेमेंट आपको करना होगा बैंक से, और आप इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 10,00,000 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर 5,75,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम बन जाएगा, ठीक है। दो चीज़ आपको समझ में आई। फिर आपका कैश रिड्यूस होगा 89,25,000 से, सॉरी बैंक रिड्यूस होगा, एंड आपका जो ये है बैंक उतने से 89,25,000 से रिड्यूस होगा, प्लस आपका क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट से वो रियलाइज हो गए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? 15,00,000, वो बैंक में रिसीव होगा अभी। और जो DRR रिजर्व था वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करवा देंगे। इतनी एंट्रीज को आपको ध्यान में रखते जाना है, आपको एंट्रीज माइंड में सोचने की है। तो इनको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है। इसलिए जनरल रिजर्व का बैलेंस ऐड होगा, DRR खत्म हो जाएगा, शेयर कैपिटल ऐड होगा, राइट। और फिर अगर एसेट साइड हम देखें तो हमारे बैंक में इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गए। सो उसमें प्लस 15,00,000 होगा और 89,25,000 का पेमेंट होता। DRR इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, फिक्स एसेट वैसे के वैसे रहेंगे और करंट एसेट्स भी वैसे के वैसे रहेंगे, राइट। सभी एंट्रीज को हम बैलेंस शीट में दिखवा देते हैं। शेयर कैपिटल हमारा 50,00,000 है, प्लस 10,00,000 हो जाएगा, 60,00,000 हो जाएगा। सो सी हियर शेयर कैपिटल इज 60,00,000, राइट। आई होप यू आर क्लियर। फिर रिजर्व्स अगर आप देखेंगे, रिजर्व्स में आप देखें जनरल रिजर्व आपका ऑलरेडी कितने से है? जनरल रिजर्व 90,00,000 है एंड PNL 10,00,000 है, राइट। तो 90,00,000 में DRR भी घुसेगा 10,00,000 का, ठीक है। तो 90,00,000 प्लस 10,00,000 वो हो जाएगा 90,00,000 प्लस 10,00,000 PNL, ठीक है। फिर प्लस 10,00,000 DRR का ट्रांसफ़र आएगा। और हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमने ₹5 प्रीमियम पे किया 1,00,000 डिबेंचर्स पे, वो 5,00,000 हमारा खर्चा हुआ, वो PNL से रिड्यूस होकर बैलेंस हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,05,00,000, राइट। ये आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,75,000 आ गए, टोटल आएगा 1,10,75,000। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इतना आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, राइट। फिर आपका DRR निकल जाएगा, डिबेंचर्स निकल जाएगा, ठीक है। अदर लोन्स वैसे के वैसे 65,00,000 एंड करंट लाइबिलिटीज वैसे के वैसे 1,25,00,000। आप यहाँ पे देख ले, ठीक है। फिर हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो भी सेम ही रहेगा 1,60,00,000।
फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, कैश बैंक हम करते हैं, अदर करंट एसेट सेम रहेगा 2 करोड़, राइट। तो आप यहाँ पे वो सभी इफेक्ट्स देख लें, 2 करोड़, राइट, 1 करोड़ 60 लाख। अभी सिर्फ हमें बैंक देखने के, बैंक आप यहाँ पे देख लें। बैंक में पहले आपके 75 लाख बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट सेल करके 15 लाख आपको रिसीव हुआ, 89,25,000 आपका डिबेंचर रिडम्पशन में रिपेमेंट हो गया, 75,000 बैलेंस आपकी बची है, वो आपकी यहाँ पे कैश एंड बैंक में आ जाएगी, राइट। आई नाउ योर बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर टैलिड। आई होप यू आर क्लियर विद दिस सम। Okay, here I end up with this chapter, redemption of debentures. If you have any query, please contact me. Also try to solve all these sums. Okay, and just don't forget we have two requirements. I forgot to make a chart over it. See, theoretical portion तो किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ डिबेंचर्स में आप ऐसा एक चार्ट बना लीजिएगा कि यहाँ पे आप लाएंगे डिबेंचर्स रिडम्पशन, ठीक है। इनकी एंट्रीज, अकाउंटिंग का चार्ट बनाएंगे आप, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर रिडम्पशन, राइट। अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इनके 3 पार्ट्स हो गए। अगर नॉर्मल आपका रिडम्पशन होगा, उनके प्रोसीजर्स, मतलब डीआरआर वाला, डीआरआर इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स वाली एंट्री, वो सभी, ठीक है। फिर आपका ओपन मार्केट से अगर परचेज होगा एंड कैंसिल होगा, ओपन मार्केट से परचेज एंड कैंसिल, तो उनका एंट्री आप यहाँ पे देंगे, लिखेंगे, ठीक है। आप ये अपना चार्ट अभी आप खुद बना लें, मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। और थर्ड आपका आएगा कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ये एंट्रीज आप यहाँ पे कर देंगे, राइट। फिर आप क्या करेंगे कि ये आपका एक चार्ट हो गया, और एक चार्ट में आप ये आपका एक चार्ट हो गया, और दूसरे चार्ट में आप लिख देंगे कि डिबेंचर डीआरआर के लिए और डीआरआर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैच्यू ये इतना बोलता है कि ये 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ये 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है फॉर अनलिस्टेड कंपनी, ये भी याद रखना। ऐसे 2 चार्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। ये आपका फर्स्ट चार्ट। आई होप नाउ यू आर क्लियर। स्टैट्यू प्रोविजन लिखवा दी मैंने, फिर डीआरआर 10%, डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, और अकाउंटिंग एंट्रीज के 3 हिस्से में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो डीआरआर रिजर्व क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से पीएनएल डेबिट टू डीआरआर, फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करवाएंगे, डीआरआर बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा 6% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स, पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये सभी एंट्रीज आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तो डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व। फिर ओपन मार्केट से आप परचेज करेंगे तो ओन डिबेंचर्स डेबिट, राइट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। फिर आपको कैंसिलेशन का एंट्री तो 6% सॉरी एनी सो एंड सो परसेंटेज डिबेंचर्स डेबिट, ठीक है, एंड टू ओन डिबेंचर्स, राइट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। ये दोनों आपका ओपन मार्केट का परचेज एंड कैंसिलेशन का एंट्री आ जाएगा। थर्ड पार्ट हमने देखा कन्वर्जन इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स का अगर आप कन्वर्जन करवा रहे तो सो एंड सो परसेंटेज डिबेंचर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। बैलेंस पेमेंट कैश में होगा तो सो एंड सो परसेंटेज डिबेंचर्स डेबिट टू कैश, राइट। एंड हमें या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि सो एंड सो परसेंटेज डिबेंचर्स डेबिट रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ठीक है। ऐसे आप पूरा एंट्री तीनों हिस्सों में लिख देंगे। मैंने सभी आपको पूरा चार्ट का आइडिया दे दिया, सबकी एंट्रीज भी मैंने बोल दिए। आपका काम है इस चार्ट को बना के लिखना,
राइट ये मेरे ध्यान में लास्ट में चैप्टर के एंड में आया, इसलिए मैं चार्ट बना नहीं पाई हूँ, बट मैंने आपको आइडिया पूरा दे दिया है। सभी एंट्रीज मैंने आपको मुंह पे यहाँ पर क्लास में बोल दिया है। अभी यू नीड टू जस्ट रिराइट दोज एंट्रीज, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपका होमवर्क है, आपको कर देना है, एंड यू विल नीड टू शेयर मी द PDF फाइल्स ऑफ दिस चार्ट। आई वॉन्ट इट, ओके, फाइन। थैंक यू, हैव अ गुड रीडिंग, बाय बाय।